کا لقب پایا، وہ پھر عوام کو سستی روٹی مہیا کرنے کا پروگرام ہو یا نوجوانوں کے لیے میرٹ کو ترقی کی بنیاد قرار دینا، غریب طلباء کے لیے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا قیام ہو یا نئی تحقیق میں مگن نوجوانوں کے لیے 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا اعلان ہو، کبھی بھی آگے بڑھنے سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور جن کا نعرہ ہے میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جوہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ آپ کی بھرپور تعلیمیں میں تشریف لاتے ہیں میاں محمد شہباز سنگھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب، جناب وزیر زراعت احمد علی اولد صاحب، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، انتہائی قابل احترام طلباء طالبات، پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، مہمان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ اگر آج اس عظیم تعلیمی درسگاہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں یہاں پر موجود ہزاروں زرعی اسکالرز کے سامنے یہ میرا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں ان نوجوانوں سے اور اپنی بہنوں سے اور بچیوں سے باتیں کر رہا جو کہ اس ملک کے اندر انقلاب لانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو زرعی انقلاب لا کر پاکستان کی معیشت کو نہ صرف مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ اقوام عالم میں پاکستان کو عظیم مقام دلوا سکتے ہیں۔ مگر اس کی چند شرائط ہیں۔ آپ کی جستجو، آپ کی شبانہ روز محنت وہ لاجواب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس ملک کے اندر 64 سالوں میں جس نظام کے اندر ہم نے زندگی بسر کی، اس نے میرٹ اور محنت کو تباہ کیا، سفارش، اقربا پروری اور میرٹ کی دھجیاں اڑانے کو، اس کو پروموٹ اور اس کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو خلیجی ریاستوں کے لیے اور مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے ایک گرین باسکٹ بننے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، آج غلہ کبھی امپورٹ کرتا ہے، کبھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ آج کبھی ویٹ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، کبھی کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کبھی بڑی مشکل سے ہم اس میں بہت مشکل سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ نوجوان بچوں اور بچیوں، میں آپ کو آج یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ
जिस तरह यहाँ पर हमारी बच्ची ने बेहतरीन तकरीर की और ये कहा कि पैलेस्टाइन में या दूसरे दुनिया में इस्लामी ममालिक में उनको टेररिस्ट क्यों कहा जाता है, इसलिए कि वो अपने वतन के अंदर रहकर वो अपने हक को हासिल करने के लिए और अगयार की गुलामी से जान छुड़ाने के लिए वो चूँकि वहाँ का नौजवान तबका दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, उसको टेररिस्ट के नाम देकर उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है। मैं आपको आज बताता हूँ कि why we are called terrorists, because you all of you and millions of Pakistanis, they want to reject foreign dictation, they want to reject foreign aid. Thrown at us like crumbs, and then with a sense of hatred against us, and we are dishonored. Our national integrity is violated at will, and we are asked to do more. मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बच्ची ने इंतहाई शानदार और बलबला अंगेज अंग्रेजी में तकरीर की, मैं समझता हूँ कि यही वो जज्बा है जो पेशावर से लेकर कराची तक 1947 में मौजूद था। मगर आज ऐसी शोला बयानी जो इस बच्ची ने यहाँ पर की और आपके दिलों को गरमाया भी और तड़पाया भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जो पाकिस्तान को सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन निजाम उनको रूहों को बेकरार नहीं करना और रब्बे दुल जलाल के हुजूर हमने शुरू होना है तो फिर इस मुल्क का रुख बदलना पड़ेगा, तारीख का धारा बदलना पड़ेगा और पाकिस्तान के वसाइल जो लूटे गए हैं उनको वापस लाकर, चाहे हम उल्टे हों सीधे हों, कौम के कदमों में निछावर करने होंगे। इस मुल्क के अंदर तालीम की यूनिवर्सिटियां बनानी होंगी और मेरा बस चले तो इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हर उस बच्चे और बच्ची को मैं पीठ से मैं बधाई बनवाऊं ताकि पाकिस्तान खास करने मेरी हुकूमत ने दिन रात काविश करके लगभग 30 अरब रुपया गरीब किसान की जेब में डाला, जिससे फिर और जमीन लीज पर दी, अपनी बेटी के हाथ भी किए, एक कमरा और बनाया और ज़राअत को 4 चांद लगे। मेरे इंतहाई काबिल बच्चों और बच्चियों, मैं आज आपके सामने ये कहना आया हूँ कि 64 साल गुजर गए, पुलों से पानी बहुत बह गया, पाकिस्तान को जो ग्रीन बास्केट होना चाहिए था आज भी हम वो मुकाम हासिल कर सके। पाकिस्तान को नेट एक्सपोर्टर होना चाहिए था, लाइफ स्टॉक का, डेयरी प्रोडक्ट्स का और कॉटन का, वीट का। आज चीनी पिछले साल कभी हम इंपोर्ट करते हैं और कभी टीसीपी उसके अंदर गड़बड़ करती है। आइए आज तलाश करें कि वो क्या वजूहात है कि आज हम एक हाथ में न्यूक्लियर मिसाइल लिए बैठे हैं और दूसरे हाथ में कशकोल है और अक़वाम आलम के बड़े बड़े दरवाजों में जाते हैं कि हमारी झोली में कुछ और टुकड़े डाल दीजिए कि पाकिस्तान जिंदा रह सके। मेरे भाइयों और इंतहाई काबिल बच्चों और बच्चियों, इससे मौत बेहतर है कि ऐसी मैं इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले ये मैंने फैसला किया कि अगर उस सोच को
अमली जामा पहनाने के लिए कि अगर पाकिस्तान ने अंधेरों से निकलना है और रोशनियों की तरफ जाना है तो फिर वो वाहिद तरीका है कि तालीम और हुनर और टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक डेयरी फार्मिंग की मेहनत अगर उसके ऊपर डाका डल जाए, जिसकी मेहनत वो अगर चोरी हो जाए, तो उसके बाद आप यह कहें कि पाकिस्तान ने बम्पर वीट क्रॉप पैदा की, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जुल्म और ज्यादती और कोई हो नहीं सकती थी। लिहाजा अल्लाह के फजल करम से उस साल मेरी हुकूमत ने दिन रात काविश करके लगभग 30 अरब रुपया गरीब किसान की जेब में डाला, जिससे फिर और जमीन लीज पर ली, अपनी बेटी के हाथ भी ले किए, एक कमरा और बनाया और ज़राअत को 4 चांद लगे। मेरे इंतहाई काबिल बच्चों और बच्चियों, मैं आज आपके सामने ये कहना आया हूँ कि 64 साल गुजर गए, पुलों से पानी बहुत बह गया। पाकिस्तान को जो ग्रीन बास्केट होना चाहिए था, आज भी हम वो मकाम हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान को नेट एक्सपोर्टर होना चाहिए था, लाइफ स्टॉक का, डेयरी प्रोडक्ट्स का और कॉटन का, वीट का। आज चीनी पिछले साल कभी हम इंपोर्ट करते हैं और कभी टीसीपी उसके अंदर गड़बड़ करती है। आइए आज तलाश करें कि वो क्या वजूहात है कि आज हम एक हाथ में न्यूक्लियर मिसाइल लिए बैठे हैं और दूसरे हाथ में कशकोल है और अक़वाम आलम के बड़े बड़े दरवाजों में जाते हैं कि हमारी झोली में कुछ और टुकड़े डाल दीजिए कि पाकिस्तान जिंदा रह सके। मेरे भाइयों और इंतहाई काबिल बच्चों और बच्चियों, इससे मौत बेहतर है कि ऐसी जिंदगी कमाल मेहरबानी थी कि हमें श्रीलंका के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी वबा है। तो शहबाज शरीफ, आप हम बताना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वबा है, लेकिन अस्पतालों में आपके डॉक्टर और नर्सें जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो उम्मीद है कि अमवात शरह कम होगी। अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम, उसके हजूर हम दिन रात सजदा रहें तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जहाँ पर खुदा न खास्ता 25,000 अमवात हो जाती, उसकी जगह सिर्फ 300 लोग इस दुनिया से कूच किए, उनका भी हमें बहुत अफसोस। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इस अजीम मादर इल्मी का एक अजीम स्कॉलर जिसका नाम डॉक्टर मसूद अकरम है, जब 2.5 महीने पहले मिला तो आधा घंटा गुफ्तगू की। मैंने ये तो बड़ा काबिल ज़हीन फतीन आदमी है। आज वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर डेंगू के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है उसका वो चेयरमैन है। अल्लाह के फज़ल करम से ऐसे लोग जो इनके नूर से माला माला है, और ये आपको मैं सलाम करता हूँ, आपकी इस अजीम दर्शगाह को, आपको, आपके टीचर्स को, वाइस चांसलर को, कि जिन्होंने ऐसे सबूत बनाए इस मुल्क के अंदर पैदा किए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे लोग अगर हम आगे लेके आते इन 64 सालों में, तो खुदा की कसम ये भिखारीपन, ये बाहर से भीख, ये बाहर के वकूफ और बाहर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज पाकिस्तान मराकश से लेकर कोलालमपुर तक, कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक पाकिस्तान की तरक्की, साइंस तरक्की का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ा होता, और कोई हमें यह न कहते कि आओ हम तुम्हें तकलीफ देते हैं। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। 80% हमारा ज़राअत से ताल्लुक है। वही ज़राअत ही हमें खाना देती है, सड़कें बनाती है, इस मुल्क के अंदर दरगाहें बनाती है, अस्पताल बनाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा कि अगर आप टारगेट्स बनाएं, मैं आपके एक नुमाइंदा वक्त को मैं आपको दावत दूंगा लाहौर के अंदर कि आए, क्योंकि यूथ जो है, आप पाकिस्तान का शानदार मुस्तकबिल आपके हाथ में, इसकी कुंजी आपके हाथ में है। इसलिए मैं आपको
नुमाइंदा बुलाऊंगा, आपके असातिज़ा कराम को भी मैं दावत दूंगा, वहाँ पर बैठ के डिटेल्स तय करेंगे। लेकिन ऐलान भी करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया की अजीम तरीन जो रिसर्च सेंटर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है या कोई और मुल्क है, वहाँ पर एक मेरिट सिस्टम के जरिए हम सिलेक्शन करें यूथ की, और मैं पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, मैं 300 कॉलेज को बाहर भिजवाऊँ दुनिया की मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये सवाल और बाकी जो भी आपके सवाल होंगे ज़राअत और ज़राअत के बढ़ावे के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, मैं इंशाअल्लाह आप जो यंग स्कॉलर्स, जो एक्सपीरियंस फार्मर्स और आपके जो फैकल्टीज हैं, इनका एक नुमाइंदा इजलास 100-150 अफराद पर मुश्तमिल, जो कि सिर्फ वहाँ पर कहावतें नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें गाइड करने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए हमें मशवरे देगा। मैं उनको बुलाऊंगा, चाहे हम 2 दिन एक कमरे में हम बंद रहें, हम बंद होकर फैसले करेंगे, उसको इंशाअल्लाह फिर बड़ी मैशत को नाफजुल अमल करेंगे, चाहे वो लाइफ स्टॉक है या डेयरी फार्मिंग है या ये आपकी एग्रीकल्चर है या आपकी जो मिडिल मैन का रोल है, तो किस तरह हमें कंटेन करना है। मैं इंशाअल्लाह ये 2 हफ्ते के अंदर इजलास बुलाऊंगा आपका। दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात काम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी किसको? ऊपर से नीचे वालों से हमेशा कुर्बानी दी, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। उनको बेचारों को आज भी एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बिजली नहीं जिसने ज़राअत को तबाह कर दिया, बिजली नहीं जिसने सड़क को तबाह कर दिया, उनके घर के जो बिजली के खर्चे और गैस के खर्चे और किराया महीने के बाद उनको नहीं पता होता ईद के ऊपर के बच्चों के लिए किताबें खरीदें कि नए कपड़े लेके आए। ये कुर्बानी आज इस्लामाबाद से देनी होगी, लाहौर, कराची और कोयटा और पेशावर। इस कुर्बानी का जो अशराफिया है उसका चैलेंज उसको कबूल करना होगा। उसके बाद पूरी कौम शबाना रोज मेहनत करेगी और मुझे यकीन है कि फिर खुश्क ज़मीनों से आप अपनी सलाहियत से चश्मे निकालेंगे और पाकिस्तान दुनिया के अभी ज़मींदार की फसल पक जाने पर उसकी पैदावार को बेचने पर होता है, बल्कि ज़मींदार जिस वक्त फसल उगाने का सोचता है तो उसे उस सिलसिले में बीज, ज़रूरी अद्वियात और खाद सूद पर महंगे दामों उसी आड़ती या मिडल मैन से लेनी पड़ती है। और इस वजह से हमारा गरीब दहकान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और हमारा जागीरदार तबका आड़ती और मिडल मैन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझ पर वादे करें कि हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में किस किस्म की मनसूबा साजी कर रही है और किस किस्म की हिकमत अमली को दुरुकार लाया जा रहा है। शुक्रिया। डीवीयू के कवर पकड़ना, डीवीयू में मौसम बैठा है, उधर उधर मौसम बैठा हुआ है, इधर बासन डीवीयू के कवर और कवर कवर खाली कवर ले उसको उससे और ले एक इसके हालात आने हैं वो तो हमारे सरों की ताज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मिडिल मैन के नाम पर जो खून चूस रहा है इसका कौम के जो मेहनतकश तबका है और जो हमारे हारी हैं और दहका हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। इसलिए जब 2009 में मैंने मिसाल दी तो वो इसलिए दी गई थी कि 25 से 30 अरब रुपया हमने गरीब किसान जेब से जाता हुआ बचाया और मेरे खिलाफ सो कॉल मिडिल मैन ने एक हाथ बना लिया, इश्तिहारात किए। मुझे उसका ना कोई गम है ना कोई फिक्र है कि मैं अल्लाह के फजल करम से आवाम की अदालत में महसूस करूँगा। इस हवाले से जो एक मैकेनिज्म है असल में उसको बनाने की ज़रूरत है। ये आपका बहुत शानदार काम है। इस हवाले से हमने प्राइवेट मार्केट्स बनाने का हमने उसका ऐलान कर दिया है, उसकी पॉलिसी हमने वजह कर इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशन है IFS उसके लिए हमने स्टार फार्म कायम किए हैं और चीन और मेट्रो जर्मनी की मदद से हमने यहाँ मॉडल बनाए
और 2 अरब रुपया हमने इसके लिए मुख्तस किया कि स्टाफ हम जो है वो बनाएंगे और सर्टिफिकेशन होगी और उससे मैं समझता हूँ कि मिडिल मैन का जो रोल है उससे इंशाल्लाह बहुत कमी होगी। उसके अलावा जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको अपना रोल अदा करना होगा बड़ी सख्ती के साथ, ताकि जो लोग एक शूट की तरह खून चूसते हैं, उधार देते हैं और फिर 25% वो लेते हैं, उनसे अपना सूद देते हैं और फिर उसके बाद हर चीज़ जो है गिरवी होती है, वो फसल काट के उनके पहले एडवांस हवाले करता है। ये निज़ाम बहुत फसूदा है। इसके लिए जो हमने अभी मैंने जिन पॉलिसी का ऐलान किया है, इसके अलावा मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये सवाल और बाकी जो भी आपके सवाल होंगे ज़राअत और ज़राअत के बढ़ावे के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, मैं इंशाल्लाह आप जो यंग स्कॉलर्स, जो एक्सपीरियंस फार्मर्स और आपके जो फैकल्टीज हैं, इनका एक नुमाइंदा इजलास 100-150 अफराद पर मुश्तमिल, जो कि सिर्फ वहाँ पर कहावतें नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें गाइड करने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए हमें मशवरे देगा। मैं उनको बुलाऊंगा, चाहे हम 2 दिन एक कमरे में हम बंद रहें, हम बंद होकर फैसले करेंगे और उसको इंशाल्लाह फिर ज़रूरी मैशत में उसको नाफजुल अमल करेंगे, चाहे वो लाइफ स्टॉक है या डेयरी फार्मिंग है या आपकी एग्रीकल्चर है या आपकी जो मिडिल मैन का रोल है वो किस तरह हमें कंटेन करना है। मैं इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते के अंदर इजलास बुलाऊंगा आपका और उसमें बैठकर आपके साथ। My name is Mohammad Adnan in the Department of Forestry and Wildlife. सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, जो कि नहायत ही अहम मसला है और वो सर मसला हमारी डिग्री से मुतल्लिक़ है। सर, हमें इस ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से फॉरेस्ट्री की डिग्री जा रही है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की, बट सर हमें पंजाब के महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ सर हमें जो खाली असामी के इश्तहारात आते हैं उसमें हमें शामिल नहीं करते और सर समटाइम्स हमें लेटर इशू करते रहते हैं कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। सर, एशिया की इस अजीम यूनिवर्सिटी से और पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी से हमें जब 6 साल बाद ये कहा जाए कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, तो हम सर कहाँ मतलब जॉब के लिए अप्लाई करें और वो स्टूडेंट क्या उससे जीतेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सर, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ सर उन मुतल्लिका महकमों को हिदायत करें कि आज तो हमारी डिग्री को वैलिड करार दें और दूसरा जो हमारे सर जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है सर उसमें इक्वली पार्टिसिपेशन और बगैर किसी इंटरव्यू के सर हमें उसका अहल करार दिया जाए। थैंक यू सर। वन बाय वन, पहला आपका सवाल है कि आपको फॉरेस्ट्री की डिग्री दी जाती है मगर जो जंगलात के जो इश्तिहारात हैं उसमें आपको मौजूद नहीं किया जाता, तो आज के बाद इश्तिहारात में जो डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ से फॉरेस्ट्री की, उनको इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा कि वहाँ पर अप्लाई कर जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में मैं नोट कर लिया आपका पॉइंट, इसके बारे में इंशाल्लाह और उस करके इंशाल्लाह फिर कोई पॉलिसी बनाए। But livestock play a very important role in the Pakistan economy. We suggest that you should provide us with such a pay for livestock sector, for example, deworming and vaccination. Students and the livestock officer may involved in such control. बहुत अच्छा। ये एक तो जो वीट सोई में आपकी जो कैंपेन में आपका जो हिस्सा है, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जो पॉलिसी है 6,000 रुपीज़ पर पर्सन, इससे कि हमें वीट ग्रो करने में बेहद फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान की पंजाब की जो प्रोडक्शन जो है वो 19 लाख टन से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी। आज बदकिस्मती से चूँकि यूरिया एक बहुत बड़ा एक कैंसर बन चुका, रिपोर्ट टाइप की, और मुझे यहाँ पर पॉइंट्स पूरे नहीं करते, यूरिया रिपोर्ट पंजाब या सूबे नहीं करते, ये फेडरल गवर्नमेंट करती है। बदकिस्मती से उन्होंने ना यूरिया टाइम पर रिपोर्ट किया और ना ही खाद की
फैक्ट्रीज को उन्होंने गैस मुहैया की। चुनाचे आज पिछले साल जो यूरिया की बोरी 700-800 रुपये थी, आज 1800 2000 तक वो क्रॉस कर गई। उसके 400 रुपये 500 रुपये मुनाफा खोरी हो रही है, पद हो रही है। और उसके बाद फेक डीलर्स को ये यूरिया दिया जा रहा है, मनपसंदों को दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रॉबरी है कि अगर ज़राअत के अंदर अब डाका पड़ रहा है यूरिया की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, तो क्या होगा? वीट पैदा नहीं होगी जितनी हमारी मतलूबा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? फिर और भिखारीपन किसको लेके जाना पड़ेगा? इससे बड़ी और जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ आवाज़ उठानी होगी कि इन्होंने टाइम के ऊपर यूरिया इंपोर्ट क्यों नहीं की। 15 लाख, कम से कम 15 लाख टन यूरिया इंपोर्ट होना चाहिए था। 7 लाख टन के ऑर्डर दिए गए, वो भी अभी आने शुरू हो रहे हैं। और इस वक्त जब आपकी जो सोइंग है वीट की, दिसंबर तक आखिर तक ये आएंगे 7 लाख टन शॉर्टेज होगी। फिर मुझे कहेंगे जनाब के पीछे भागो। मैं किनके पीछे भागूँ? तुम्हारे उन डॉक्टरों के पीछे जिनको तुमने पाला है और उनको गरीब किसान को वो लूट रहे हैं, जेबें काट रहे हैं। अगर यूरिया की तादाद पूरी होती तो मैं अल्लाह के फजल करम से टाइम पर और कीमत को भी इंश्योर करवाता। अगर 200, अगर आपको 200 टमाटर चाहिए और मार्केट में 25 है तो 175 मौजूद नहीं, तो उसकी कीमतें किस तरह आप उसको मेंटेन करवा सकते हैं? ये कानून जो है सप्लाई और डिमांड का, उसके खिलाफ है। तो मेरे नौजवान साथियों, असल में बात यह है कि वहाँ पर इस्लामाबाद में वहाँ पर अजदहा बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पता नहीं अजदहा ज़रा खतरनाक होता है या चोर ज़रा खतरनाक पता नहीं है। कहने का मकसद ये है कि लेकिन मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, अपने ज़रिए किसान भाइयों के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हर जगह इसकी आवाज़ उठाएंगे। और रही बात इस कैंपेन में लाइफ स्टॉक को शामिल करने के लिए आपके सवाल बड़ा वैलिड है और मैं लाइफ स्टॉक को हदायत करूँगी कि वो भी लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ में आपको इस कैंपेन में शामिल करें। मेरा नाम मुतासर मुजफ्फर है और मैं प्लांट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सर जैसे मेरा सवाल आपसे यह है कि सूबे भर में डेंगू भर की वबा से हज़ारों अफराद मुतासर होते हैं और 350 से ज़्यादा हलाकत की बाइस बनी। कि हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो दूसरे ममालिक हैं उनमें डेंगू की वजह से जो शरह मवात है वो हमसे 4% ज़्यादा है। इस पर हम इस हवाले से हम मियां शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार करते हैं कि उनकी अंतिक मेहनत और कोशिशों की वजह से डेंगू पर काबू पाने में हमें मदद। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कोशिश यही है, ये कौम की दुआएं और हर एक की तलाश मेहनत। अलबत्ता ये ज़रूर है कि डॉक्टर और नर्सेस और पैरामेडिक ने इसके ऊपर शबाना रोज़ मेहनत की और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने से काबू पाया। अगले साल इंशाअल्लाह हम करेंगे। सर मैं पीएच जानवर एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपने बात की है कि आप मीट प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप डेयरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब तक सर प्रोडक्शन नहीं आते तो ये सिर्फ एक खाब रह जाता है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने पीएच जानवर एग्रीकल्चर साइंस की डिग्री दी है, लेकिन सर अभी तक डिग्री ना तो सर्विस भी आ रही है और ना पीवीआर की डिग्री को मांग दिया। वो बैठा हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको सर्विस शुरू में भी याद करवाएं और पीवीआरसी की जिसको रिकग्नाइजेशन ले दें। बहुत शुक्रिया आपने मेरा आंसर किया और इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सर माय नेम इज हाफिज अली रजा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्री हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं ताकि हम जब ग्रेजुएट्स अपना इल्म और तजुर्बा और तमाम उसको मुकम्मल बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाएं ताकि हम दूसरों को नौकरियां दिलाने की बजाय उन लोगों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकें। बहुत बड़ा सवाल है आपका और मैं इतराफ़ करता हूँ कि जो ज़रूरी ज़मीनें फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो अलॉट की गई और ये भी एक तारीखी कारनामा है मेरे खादिम की हुकूमत का, लेकिन कई ज़मीनों पर अभी तक कब्ज़ा है। क्या कीजिए कि मुशर्रफ दौर से कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के अंदर
वारिद हुआ और पिछले 11 साल में उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कब्जे किए और आज भी दूसरी शक्ल में जो कब्जा ग्रुप है वो इस्लामाबाद के अंदर बैठा है। मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सूबे में इन कब्जा ग्रुपों से, कब्जा माफिया से जान छुड़वाऊँ। यहाँ पर नसीम सादिक पता नहीं है कि नहीं, ये पॉलिसी इस शख्स की मरहूने मेहनत है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को, दरई ग्रेजुएट्स को ज़मीनें अलॉट करना, ये नसीम सादिक का ये ब्रेन चाइल्ड है और इसने ये मसला किया था। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ पर कब्जे क्योंकि नसीम सादिक फैसलाबाद आ गए और फैसलाबाद में तक रात काम कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि इस बारे में जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करवाएंगे और मुझे 1 महीना दे दें, 1 महीने के अंदर ये कब्जा ग्रुप वहाँ पर नहीं रहेगा। My name is Sainam Sadar from BSc Honors 7th Semester Department of Technology. मेरा काबिलाना सबसे ये क्वेश्चन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंतजामिया में 2010 में जो इस्लाह आया, उसे जिन इस्लाह को जो इस्लाम मुतासिर हुए स्टूडेंट्स, सैकड़ों स्टूडेंट्स को न सिर्फ फीसें माफ की बल्कि इस्लाम में मतलब कई डॉक्टर्स और डिफरेंट इमदादी जो थी टीम्स रवाना की। इसके साथ साथ जिला जंग की एक तहसील 18 हज़ारी के एटलीस्ट 10 विलेज में बहुत अहम इकदाम किए गए, जिसमें जो स्कूल चिल्ड्रन थे उनको कंप्लीट स्कूल बैग दिए गए और इसके साथ साथ फार्मर्स थे उनको वेजिटेबल सीड्स और बीट सीड, अनाज और डिफरेंट खादें दी गई और ये देने के साथ साथ नई सरगर्मियाँ थी उनकी असर शुरुआत की गई। गुफ्तगू अपने सवाल तक महदूद करें। सवाल थैंक यू वेरी मच। मेरा पंजाब से ये क्वेश्चन है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस अहम इक़दाम के मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सलाह जो आपने दिन रात काम किया, स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्रोफेसर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसको मुबारकबाद। यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा को अमली तौर पर 6,000 रुपये आज़ादी के साथ शामिल किया है, इससे आप सूबे की ज़राअत को कहाँ देखते हैं? थैंक यू। मैंने अभी इसका ज़ूरिया के बारे में जिक्र कर दिया था कि मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप इस कैंपेन में शरीक हैं, लेकिन इसके लिए अगर ज़ूरिया अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपना पुराना हदफ किस तरह हासिल करेंगे, चल जाएगा उसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी जो मैं कॉन्फ्रेंस बनाऊँगा उसमें 150 स्कॉलर्स और टीचर्स होंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह एक इंटेंस डिस्कशन होगी और उसकी रोशनी में इंशाल्लाह हम पढ़ सकते हैं आगे। लेकिन इन्हीं रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खवातीन की तरक्की बेहतर के लिए क्या इक़दाम कर रही है? ये बहुत ही शानदार आपका सवाल है। एक तो मैंने 4 नई यूनिवर्सिटी पंजाब में खवातीन यूनिवर्सिटी के एग्जाम का इस बजट में ऐलान किया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक क्वांटम जंप है खवातीन की, जो इस मुल्क के अंदर जो आबादी है, आपकी आबादी का तरफ 50% है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि 4 नई खवातीन यूनिवर्सिटी का काम एक बहुत बड़ी एक जहद है। इसके साथ साथ जो 1 लाख कंप्यूटर्स हम दे रहे हैं, वो यही जो हमारी बच्चियाँ जो तालीम हासिल कर रही हैं जो शहर की, उन सबको जो पोजीशन होल्डर हैं उनको दी जाएगी। इसके अलावा हमने पंजाब के अंदर 1 अरब रुपए के यानी इंटरेस्ट फ्री लोन हमने वो अखुवत जो हमारी एक बहुत बड़ी नोबल एक NGO है, पाकिस्तानी NGO, ये खासी NGO नहीं है, उनको 1 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है ताकि वो 50,000 रुपये तक 50,000 बच्चों और बच्चियों को और पंजाब के लोगों को वो कर्जे दें अपना, जिसमें इंटरेस्ट माफ होगा ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों और कोई अपने कढ़ाई करे, सिलाई करे, कोई और मशीन रखे, जिसको कोई हुनर है वो कमाए और अपने ख़ानदान का बोझ बांटे। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी ये एक वे फॉरवर्ड है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, मैं पीठ की बात नहीं कर रहा, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड की बात नहीं कर रहा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जिसके पास 10 अरब रुपया है और वो पंजाब भर में
बच्चों और बच्चियों को वहाँ के लोकल प्राइवेट स्कूल्स में वो फीस दिलवाने का उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमने इस साल टेक्टा जो है टेक्निकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पंजाब का, उसमें ख़वातीन के लिए हमने ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर हमने बजट एलोकेशन किया उससे बढ़कर जो 20,000 येलो कैब जो हमने पंजाब में हम नौजवान बच्चों को और बच्चों को दे रहे हैं। रावलपिंडी में एक खुशकिस्मत बच्ची FSC किया है, उसके नाम ये पूरा निकला और उसको ये गाड़ी उसको मिली और अल्लाह के फतोकरम से वो येलो कैब वो चलाएगी और खुदा के फतोकरम से रिज़्क़ हलाल कमाएगी। तो आप पाकिस्तान की आबादी का 50% है। अगर आप आगे ना बढ़े, बैंकों में आप बैंकर्स ना बने, अगर आप सियासतदान ख़वातीन ना बने, अगर आप इंजीनियर्स ना बने, अगर आप आगे बढ़कर इकोनॉमिस्ट ना बने, अगर आप आगे इकोनॉमिस्ट ना बने, अगर आप आगे बढ़कर डेंटिस्ट ना बने, अगर आप आगे बढ़कर आप फाइनेंस एक्सपर्ट ना बने, अगर आप आगे बढ़कर वज़ीर और आगे बढ़कर मुशीर ना बने, तो पाकिस्तान का हदफ पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी ख़वातीन से ख़ास अपील है कि आप आगे बढ़ें। हुकूमत पंजाब ये खादम आपकी तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने को तैयार है। मंथली इनकम जो फादर या गार्डियन की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे वालिदैन जिनके 2, 3 या 4 बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनकी माहाना आमदनी जो है वो 50,000 से कुछ ज़्यादा होती है, उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी आपसे मुल्माना गुजारिश है कि इस क्राइटेरिया को चेंज किया जाए और ये आपका बहुत जायज़ बात है। मुझे मैं और भी मुश्किल किया यहाँ पर वहाँ की बात हुई तो ये देखें कि इस मुल्क की जो ख़राब तर मैशत है उसके बावजूद जो डाकाज़नी हो रही है और मुल्क के खजानों को लूटा जा रहा है, उसके बावजूद पीस स्कॉलर्स के लिए हमने अल्लाह के फज़ल से पंजाब में 8 अरब रुपए का फंड जो हर साल 2 अरब बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह जब ये डाके बंद होंगे, डाकुओं और चोरों को जेलों में भिजवाया जाएगा तो फिर आपका मुकाबला पूरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कि जिस तरह आपने MBBS वालों का पे स्केल आपने स्पेशल पे पैकेज बढ़ाया है, इसी तरह एग्रीकल्चर और वेटरनरी वालों का बढ़ाया जाए ताकि आप ये सही तरीके से मतलब कि हम स्टूडेंट्स परफॉर्म कर सकें, क्योंकि आपको भी एग्रीकल्चर और वेटरनरी का मतलब कि सारी इम्पोर्टेंस का पता है क्या है इसकी नेक्स्ट कमी। सर ये दो आपके दोनों सवाल बड़े अहम हैं और इस कॉन्फ्रेंस में इसको बड़ी पहले तो सबसे मैं खराब तहसीन पेश करूँगा आपकी और तरीन यूनिवर्सिटी की काविशों को, और जो अर्ज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गालिबन 4.5 लाख ट्रैक्टर्स हैं, और इस वक्त अगर आप एग्रीकल्चर में फॉर्म मैकेनाइजेशन की एग्रीकल्चर के हवाले से बात करते हैं तो हमें इस वक्त 3 गुना ट्रैक्टर ज़्यादा चाहिए ताकि फॉर्म मैकेनाइजेशन हो। और इसके लिए यूँ होगा कि अगर हमारा छोटा किसान जो है वो इसका अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर ये जवाब पेश किया जाता है तो गवर्नमेंट की जानिब से ये किया जाना चाहिए कि फार्मर्स को सब्सिडी दी जाए और ट्रैक्टर्स को जो है वो लीज पे, जैसा कि आपने ग्रीन ट्रैक्टर्स की एक स्कीम शुरू की थी उसको हम दोबारा से बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और दूसरा अभी इसमें डालनी है ये उसका यही है कि जो ड्रिप इरिगेशन है जहाँ पे दुनिया भर में हाई एफिशिएंसी वाटर कंजर्वेटिव सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा जो है नई इजाद है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को ज़रूरत है एक्सेल करने की। अब मसला कहाँ पे आता है वज़ीर आला साहब? मसला यहाँ पे आता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, अब हमें ये है कि एक बूस्टअप चाहिए, वर्टिकल बूस्टअप काम हो चुका, टेक्नोलॉजीज आ चुकी। अब आप देखिएगा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के अंदर कितने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, अगर कुछ हैं तो इक्का दुक्का है, वो बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी सजेशन ये है कि जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को हायर करें हु आर मेंट फॉर द वर्क। नो डाउट कि बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, बहुत सी फैकल्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको ज़रा आप एडवाइस चाहिए। पिछले 3 सालों में हमने 20,000 ट्रैक्टर ग्रीन ट्रैक्टर मुहैया किए, 12.5 एकड़ के किसान ज़मीन के मालिक को
और उसके ऊपर अरबों रुपए हमने सब्सिडी दी, उसका किसान को और ज़राअत को बहुत फ़ायदा पहुंचा। इस साल हमने बजट में ड्रिप इरिगेशन और लैंड लेवलिंग के लिए हमने अरबों रुपए मुख्तस किए और आई टोटली अगर हमने ऑन फ्रॉम मैनेज वाटर मैनेज